Dear all, welcome again. Here is Professor Rameshwar Gagrani from Gagrani IIT JEE NEET and Foundation. We have two branches. One is at Nasik and another branch is at Shahada. Both are very powerful branches. Since 22 years, we have been teaching various courses like foundation courses for lower classes, for higher classes, 11th science, 12th science, along with board of studies, and the most important prominent national entrance exams across the nation. Various entrance exams are there. So the most prominent exams are IIT JEE NEET. These are the national entrance exams. They have the international status. They are meant for engineering courses as well as medical courses. And along with these national entrance exams, there are various entrance exams across the nation. We are also preparing for those entrance exams which are particularly aimed for particular courses, particular jobs like BITSET, VIT, NATA, particularly for architecture. So here is Professor Rameshwar Gagrani. We are learning chemistry. Right now we are learning hydrolysis of salts in the chapter ionic equilibria of solutions. So just before we have finished the hydrolysis of salts, what are the possibilities of acid-base reactions or neutralization reactions when it forms the salt and water? There are four types of salts as mentioned, as discussed: simple salts, double salts, mixed salts, and complex salts. Now again, these salts are classified as, for example, simple salt classified as normal salts, acidic salts, basic salts. Depending upon their properties, depending upon the properties of the salts, we have classified these salts likewise and their various examples. Now it is interesting to note that when these salts are formed, there are two possibilities. This is very important. Mention yourself. जब कोई क्षार बनेगा तो ये एसिड और बेस के रिएक्शन के साथ इंटरेक्शन होने के बाद क्षार बनता है. एसिड और बेस या एसिड और अल्कली, इनका जब इंटरेक्शन होगा तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, जिससे क्षार मिलेंगे और पानी मिलेगा. अब जो मुझे क्षार मिलने वाले हैं, इसके दो पॉसिबिलिटीज है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अगर समझे तो हमें हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट समझ रहा है. क्या पॉसिबिलिटीज है? पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इनका जब आयोनाइजेशन हो जाएगा, सो व्हाट वी विल गेट, द आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्ट्स विल प्रोड्यूस कैटायंस एंड एनायंस. करस्पॉन्डिंग जो भी सॉल्ट होंगे उसके कैटायंस एंड एनायंस मिलेंगे. नाउ दिस कैटायंस एंड एनायंस will act in a two way. One way is what? Either they react with water. Salt and water मिला है तो water के साथ reaction के chances है. Otherwise, second chances is what? Second chance is what? They remains as a hydrated ions in aqueous solutions. वो मतलब दो चीजें हैं, ठीक से समझो. मेरी बात बिल्कुल सही तरीके से समझो. एक तो वो पानी में छलांग लगाएंगे, पानी में नहा धो के तैर के एंजॉय करके बाहर आ जाएंगे. एक तो ये पॉसिबिलिटी, ठीक है ना. पानी में छलांग लगाई, 2 4 10 5 दोस्तों ने समुद्र में छलांग लगाई, समुद्र में तैरे हो, बहुत अच्छी तरह से तैर के उन्होंने एंजॉय किया और बाहर आ गए. एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी. नहीं तो वहां के वही रह गए, वहां के वही 4 8 दिन 15 दिन महीना भर 4 महीने भर साल भर वही तैर रहे. दो पॉसिबिलिटी. तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि कैटायंस और एनायंस जो है, जो सॉल्ट्स के ऑन आयनाइजेशन सॉल्ट विल प्रोड्यूस कैटायंस एंड एनायंस. सो दिस कैटायंस एंड एनायंस आइदर दे रिएक्ट विथ वाटर, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, और दे रिमेन हाइड्रेटेड आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन. एक तो वो हाइड्रेटेड आयन एक्वियस सॉल्यूशन में रहना पसंद करेंगे, नहीं तो क्या होगा, दिस इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्ट, रिमेंबर योरसेल्फ. अदरवाइज सेकंड पॉसिबिलिटी इज व्हाट? The water reacts with either cation of the salt, or water reacts with anion of the salt, or water reacts with both cation as well as anions of the salt. ये दो पॉसिबिलिटी मैंने आपके सामने रखी. जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं. What is hydrolysis of salts? Hydrolysis of salts where the ions of the salts
on ionization salt will produce ions. The ions of the salt, I mean to say water when reacts with cation of the salt, or water when reacts with anion of the salt, or water when reacts with both cations as well as anions of the salt to reform corresponding acid and bases. To reform corresponding acid and bases. To reform corresponding acid and bases, phenomenon is called as hydrolysis of salts. इससे मैं hydrolysis of salts बताऊं. हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? जो कैटायंस या एनाइंस प्रोड्यूस हुए इसके साथ वाटर रिएक्ट हो गया एंड इट रिवर्सिबली स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस द एसिड्स एंड बेसेस बिकॉज salts are produced due to the interaction in between acid and bases. This is hydrolysis of salts. Now, what is the possibility? We know there is strong acid and strong base. So we must know the anions of strong acids and we must know the cations of strong bases. We must know the anions of weak acids. We must know the cations of weak bases. But how we know all these things? ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा कि एसिड स्ट्रांग है क्या वीक है, बेस स्ट्रांग है क्या वीक है, इससे हमें ये सारा पता चलेगा. तो हमारे पास तो एग्जांपल बहुत से. स्ट्रांग बेस हमें मालूम है, हमें स्ट्रांग एसिड्स मालूम है. तो मैं कुछ कैटायंस आपको बता देता हूँ. कैटायंस होंगे तो स्ट्रांग बेस के होंगे, एनायंस होंगे तो स्ट्रांग एसिड के होंगे. मैं स्ट्रांग बेस के कैटायन बता रहा हूँ, मैं स्ट्रांग बेस के एनायंस बता रहा हूँ. तो एनायन ये एसिड से रिलेटेड कंसेप्ट है, कैटायन ये बेस से रिलेटेड कंसेप्ट है. पहले ये क्लियर कर लो. अगर मैं कैटायंस बोल रहा हूं, अगर मैं कैटायन की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर इस वक्त हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट डील कर रहा हूं. कैटायंस की बात कर रहा हूं तो ये बेस से रिलेटेड होगा. एनायंस की बात कर रहा हूं तो ये एसिड से रिलेटेड होगा. यहां तक तो बिल्कुल सही है. अब मैं कुछ स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायंस बता देता हूं. सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन, कैल्शियम प्लस 2 आयन, बेरियम प्लस 2 आयन. These are the cations of the strong bases. Similarly, cations, anions of the strong acid. इसी तरह से मैं anions of the strong acid बता रहा हूं. हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है. हमें यह भी पता है कि नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है. हमें यह पता है कि परक्लोरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो अब इनके मैं एनायंस लिख दूं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एनायन होगा Cl माइनस, नाइट्रिक एसिड का एनायन होगा NO3 माइनस, ब्रोमिक हाइड्रोब्रोमिक एसिड का एनायन होगा Br माइनस, दैट इज ब्रोमाइड आयन. एंड सिमिलरली क्लोरेट आयन होगा परक्लोरिक एसिड का एनायन. अब ये मैंने सेपरेट कर दिए. अब इनके साथ वाटर के साथ रिएक्ट हो गए. दिस इज इंटरेस्टिंग. देखो अब ये रिएक्ट होंगे कि नहीं, और रिएक्ट होंगे तो क्या होगा? पॉसिबिलिटीज है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आएगी. हम नेचर ऑफ सॉल्ट समझ रहे हैं. हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट अगर समझना है तो नेचर ऑफ सॉल्ट समझ लेना पड़ेगा, तभी हम कुछ पीएच का काम कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि जब रिफॉर्मिंग ऑफ एसिड एंड बेसिस शुरू होगा तो इट विल अफेक्ट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशंस. रिमेंबर योरसेल्फ, मेरी बात समझ लो. हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट अफेक्ट्स द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन. व्हाई? बिकॉज the salts, the cations or anions of the salts reacts with water to reform the acids and bases, and therefore it will affect the pH of a solution. This is very simple. Is it? What is the relation of hydrolysis of salts with pH of a solution? Hydrolysis of salts that results into the alter in pH of a solution. pH के solution में बदल कर देगा. क्यों? क्योंकि reforming of acid and bases शुरू हो गया. It will reform the acid and bases. That is what we call it as hydrolysis of salt. Hydrolysis of salt, this definition बता रहा हूँ ना. The cations or anions of the salts formed when they react with water, either individually or both, then they reproduce the acids and bases. They start to reproduce the acid and bases. The process is called as hydrolysis of salts. Now we have the cations of strong bases as well as anions of strong acids. Simply get hydrated but do not hydrolyze. Remember yourself. Now this is one point we mentioned here. हमने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात समझ ली. अगर स्ट्रॉन्ग कैटायंस और स्ट्रॉन्ग एनायंस होंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन होगा, और उसका जो सॉल्ट होगा वह पहले that will prefer to the first possibility, not second possibility. First possibility क्या थी? On the ionization of this salt, cations and anions formed, they remain as hydrated ions in aqueous solution,
एंड सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो व्हाट विल बी पॉसिबिलिटी, दे रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल टू रिफॉर्म द एसिड्स एंड बेसिस. So the cations and anions of the strong acid and strong bases remains hydrated, remains hydrated ions in aqueous solutions. बिल्कुल मेंशन कर लो, बिल्कुल मेंशन कर लो, आप समझ रहे हैं. चाय विथ रामेश्वर गगरानी. थैंक यू. कितने खुश हो गए तुम सभी. आप सभी, मैं जो बात बता रहा हूं इस पे हमने क्या आउटकम मिला है, यहां पर हमने क्या मिला है ये मैं बता रहा हूं. जो हाइड्रेटेड आयंस है, कैटायंस एंड एनायंस, बिल्कुल ठीक से सुनो. अगर वो हाइड्रेटेड आयंस करके एक्वियस सॉल्यूशन में रहना पसंद करते हैं तो स्ट्रॉन्ग कैटायंस और स्ट्रॉन्ग एनायंस होने चाहिए. मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट होंगे, they will remain as a hydrated ions, their ions will remain as a hydrated in aqueous solutions. उनकी पॉसिबिलिटी नहीं है to react with water and to reform acids and bases. This is the conclusion from the reaction. यह हमने conclusion निकाला रिएक्शन में से. आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं. किसी को नहीं समझाओ तो आप पूछ सकते हैं मुझे. स्ट्रॉन्ग कैटायन और स्ट्रॉन्ग एनायन अगर हमें मिलते हैं, the salts on ionization produces, if the salt on ionization produces strong cations and strong anions, they remain hydrated ions in aqueous solutions. They will not hydrolyze. उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसका ध्यान रहे. देखो, वह एक्वियस सॉल्यूशन में रहना पसंद करेंगे लेकिन हाइड्रोलिसिस नहीं होगा उनका. किसका? स्ट्रॉन्ग कैटायन और स्ट्रॉन्ग एनायंस का. लेकिन स्ट्रॉन्ग कैटायन और स्ट्रॉन्ग एनायन कहां से मिलेंगे? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन होगा तभी मिलेगा हमें. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन होगा तभी हमें क्लोराइड आयन और सोडियम आयन मिलेंगे. क्यों? क्योंकि HCl और NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा? बराबर है ना. हमें NaCl मिलेगा और NaCl को आप क्या करो, NaCl को आयनाइज कर दो तो Na प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा. और जब Na प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा, देयर रिमेन्स as a hydrated ions in aqueous solutions. They will not react with water. They will not react with water to reform the corresponding acids and bases, and hence we can say that they do not hydrolyze. इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं कि वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते. वो हाइड्रोलाइज होना पसंद नहीं कर रहे. तो आप सभी को मेरे यहां तक का टॉपिक अगर सही समझाओ तो कितने स्टूडेंट्स को सही समझाए, क्या आप रिप्लाई कर सकते हैं? How many students understood this total interaction? Okay, maximum students understood this interaction. The reason is that they are very conscious, they are very cautious and conscious about the voice clarity, because this online is totally depend upon the voice clarity. ऑनलाइन लेक्चर जो है वॉइस क्लैरिटी पे डिपेंड है. ये स्क्रीन पर आप कहां बैठे हो, मैं कहां बैठा हूं एज ए टीचर, उस पर डिपेंड नहीं है. ये वॉइस क्लैरिटी पे डिपेंड है और कुछ बोर्ड प्रेजेंटेशन है तो उस पर डिपेंड. मेरी बात आप सभी ठीक से समझ रहे हो? इसीलिए वॉइस क्लैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है. सो डियर ऑल, टुडे वी हैव learn about the hydrolysis of salts and which salt will not hydrolyze and why not hydrolyze. This is totally we learned today. So today I shall stop here. I shall give 2 minutes to you to interact and to chat. If you have any queries about the today's topic as well as the topic taught to you, you can ask me right now. You can chat with me. So thank you dear all. आप सभी का धन्यवाद. इन प्रेजेंस आपने ऑनलाइन आके लाइव स्ट्रीमिंग को रिस्पॉन्स किया इसके. थैंक यू वंस अगेन. हियर इज प्रोफेसर रामेश्वर गगरानी.